slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, well don't show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that speaking slow, speaking fast? I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. लगभग 2 किलोमीटर का है। यहाँ पर काफ़ी लोग जॉगिंग भी करते हैं और रनिंग करने के लिए विशेष तौर पे। और उसके अलावा अंदर और भी 2 ट्रैक बने हुए हैं। एक के अंदर ये पक्का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर लोग विशेष तौर पे जॉगिंग करते हैं और वॉकिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये है अशोक उद्यान का झूला, यानी बच्चों का जो सेक्शन है। यहाँ पर छोटे बच्चे झूला खा सकते हैं। बच्चों के लिए विशेष तौर पर यहाँ अलग अलग प्रकार के झूले लगे हुए हैं और कुछ बड़े लोग भी यहाँ झूलों का लुत्फ़ है जो उठा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों के खेलने के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर झूले हैं। ओके, तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ अशोक उद्यान की ओपन एयर जिम के अंदर। यहाँ पर ओपन एयर जिम है जो सरकार द्वारा लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी फ़िटनेस पर वर्कआउट करते हैं और स्लिम ट्रिम हो जाते हैं। तो पूरी जिम है जो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस किस प्रकार के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं लोगों के जिम करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी टाइप के जो ओपन एयर जिम के इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग अपनी फ़िटनेस का यहाँ पर बराबर ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे इसमें सुना ही नहीं देगा, इसमें बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलिए, क्या नाम है आपका? आशा चौधरी। आशा चौधरी। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? झूला खा रही हूँ। झूला खा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बच्चों में काफ़ी यानी घूमने के लिए आते हैं तो उनको काफ़ी एंजॉयमेंट हो जाता है। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे जिम के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सहनी हमें
तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अशोक उद्यान के सेंटर में। ये अशोक उद्यान बीच में से यानी चारों ओर बने हुए ट्रैक और बीच में पूरा गार्डन है। यहाँ पर धूप लगी हुई है, घास लगी हुई है और लोग यहाँ पर बैठते हैं, वर्कआउट करते हैं और भी मतलब एंजॉय करते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए भी आते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पूरे फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं जगह जगह पे और बैठने के लिए छतरियाँ बनी हुई है जहाँ पर भी लोग धूप में बैठ सकते हैं। अभी तो ऐसे शाम का टाइम है और यहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट है, सेल्फ़ी पॉइंट भी लगा हुआ है। तो अभी आपको लेके चलते हैं सेल्फ़ी पॉइंट के पास में। वहाँ पर भी लोग सेल्फ़ी लेते हैं और काफ़ी उत्साह भरा माहौल है। तो चलिए चलते हैं सेल्फ़ी स्पॉट। सो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अशोक उद्यान के सेल्फ़ी पॉइंट के पास में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है आई लव सन सिटी। और जोधपुर के अंदर काफ़ी अलग अलग स्थानों पर सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए थे, उसी श्रेणी में यहाँ पर भी एक सेल्फ़ी स्पॉट बनाया गया है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर सेल्फ़ी क्लिक करते हैं और सन सिटी के प्रति अपना जो प्रेम है, प्यार है वो व्यक्त करते हैं। तो हम भी यहाँ पर सेल्फ़ी लेंगे जो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सेल्फ़ी लेते हैं और आपको और भी व्यू दिखाते हैं कि ये किस प्रकार का है जो दिखता है। सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो युवा हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी करने वाले हैं, जो अलग अलग फील्ड में आर्मी में जाना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए। वो भी अशोक उद्यान के अंदर अपना पसीना बहाते हैं और यहाँ पर जी तोड़कर मेहनत करते हैं। तो आप भी अगर आर्मी की तैयारी करना चाहते हो और जोधपुर के रहने वाले हो तो अशोक उद्यान के अंदर अच्छा माहौल आपको मिल सकता है। आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ पर आर्मी की तैयारी को आप ऊंचाइयां तक पहुंचा सकते हो। और ये है अशोक उद्यान का गार्डन जहाँ पर अभी शाम का टाइम है और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं और कुछ देर अपने मन की बातें करने के बाद वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अशोक उद्यान के अंदर काफ़ी सीनियर सिटीज़न हैं, वो भी अपनी हेल्थ और फिटनेस को फिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं और योग व्यायाम करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अशोक उद्यान का क्या महत्व है। तो अभी हमारे साथ में है ओम प्रकाश जी जो काफ़ी टाइम से अशोक उद्यान के अंदर आते हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं अशोक उद्यान के बारे में। हाँ तो भाई साहब जी राम राम। हाँ, और आप अशोक उद्यान में कितने टाइम से आ रहे हो? करीबन 14-15 साल हो गए जी 14-15 साल हो गए। अशोक उद्यान को बने हुए कितना टाइम हो चुका है लगभग? 18 साल तो हुए होंगे, 15-18 साल। अच्छा, और सीनियर सिटीजन के लिए? नहीं, सभी के लिए सीनियर तो सिटीजन के नहीं, सभी के लिए तो है ही, सभी तो लोग यहाँ पर आते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए अशोक उद्यान का एक क्या महत्व है, अशोक उद्यान की क्या वैल्यू है? अशोक उद्यान सीनियर सिटीजन के लिए तो वो तो उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं होता, उनके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, लाभप्रद है, ऑक्सीजन की बहुतायत है। ये पाल रोड बाड़मेर हाईवे पे में मुख्य रोड पे नज़दीक बसा हुआ है जी। और पास में करीबन 10-20 आवासीय कॉलोनियाँ हैं, उनके बहुत ही सुविधाजनक है। ये जोधपुर महानगर में मंडोर के बाद यही सबसे बड़ा उद्यान है। लेकिन मंडोर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी यहाँ आते हैं भ्रमण करने के लिए तो अशोक उद्यान में, शहर में इसी में आते हैं। एक जोधपुर का मात्र एक उद्यान है ये जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। करीबन 8 गार्ड्स की ड्यूटी लगी रहती है यहाँ पे, ये है नहीं। बाकी सब यहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं। अशोक उद्यान का एकदम मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। तो अभी ये यहाँ पर है जो सरकार ही पूरा काम करती है या यहाँ के जो आसपास का जन समुदाय है वो भी सहयोग देता है? भागीदारी जन समुदाय की भी भागीदारी रहती है। पहले ये आवासन मंडल के अंडर में था, अभी ये JDA के अधीन है। तो अभी हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं और इनसे जानते हैं आप अशोक उद्यान से कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैं अशोक उद्यान से 20 साल से जुड़ा हूँ और मेरा घर यहाँ पास में है, सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे। अच्छा, फिर तो आप यहाँ मैं तो डेली सुबह शाम आता हूँ। पहले वॉक करता हूँ 3 किलोमीटर सुबह शाम, फिर बाद में यहाँ यार दोस्तों के पास बैठ करके मनोरंजन करता हूँ। मेरे रिटायर्ड हुए हुए 6 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी वैसा फिटनेस हूँ जैसा पहले था, उससे भी बढ़कर कम नहीं। क्यों? यहाँ मेरे को सब तरह से सुविधा है और घूमने की, बैठने की, सब मेंटेनिटी सब अच्छी है। सब तरह से मेरा दिमाग भी फ्रेश रहता है कि यहाँ आकर के फिर जाता हूँ घर पे खाना खा करके फिर अपना काम करता हूँ।
और बच्चों के लिए भी यहाँ घूमने के लिए सब साथ हैं, फैमिली वाले आते हैं, घूमते हैं कच्चे। सबसे बड़ा इससे इतना बड़ा अपने जोधपुर में क्या पूरे राजस्थान में देखा जाए तो 100 बीघा का 90-100 बीघा का पार्क नहीं मिलेगा इतना बड़ा देखने लायक घूमने का। सबसे बड़ा पार्क है। और अभी ये देख रेख करने वाली यहाँ चौकीदारों की जरूर कमी है। 3 चौकीदार लगते हैं शिफ्ट के अंदर, या कम से कम 5 चौकीदार होने चाहिए कम से कम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चौकीदारों की कमी है? उसकी वजह से क्या व्यवस्था है? क्या इसका कारण सबसे बड़ा एक तो क्या झूले हैं बच्चों के लिए, वहाँ झूलने के लिए बच्चे नहीं झूल करके बड़े झूलते हैं, औरतें झूलते बड़े झूलते हैं, वो टूट जाते हैं, बच्चों को झूलने का नंबर नहीं आता। इस कारण से एक चौकीदार वहाँ खड़ा हो जाए तो बच्चे के झूलने के लिए सब कुछ हो सकता है, उसके अंदर कोई नहीं। सबसे बड़ा ये। और ये कहीं भी पिंक पॉइंट एक्सीडेंट सिटी जो है वहाँ की वो क्या करंट का सामान होती है, वहाँ भी एक चौकीदार खड़ा हो, कहीं ऐसा नहीं हो किसी का हादसा हो जाए, वहाँ भी खड़ा होकर कह दे फोटो खिंचवानी है या पिक्चर कुछ भी करना है आपको लेना है तो थोड़ा दूर रह के खड़ा करें। इसलिए चौकीदार की वहाँ जरूरत ज़्यादा होती है। ये जो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, सेल्फी पॉइंट उसके भी क्यों करंट बाहर है, वहाँ पर करंट आ जाता है। करंट लाइट लगती है रात को लाइट होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा बरसात के टाइम कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी स्पार्क हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं करंट हो सकता है कभी भी, तो हादसा भी हो सकता है। इसलिए चौकीदार हो तो उसको कह दे इसके दूर से दूर रह करके आप सेल्फी लो, अंदर मत लो। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने एक नई जानकारी भी ले ली है कि अशोक उद्यान के अंदर जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर अगर आप आते हैं और सेल्फी लेते हैं तो थोड़ी सी जो दूरी बनाकर सेल्फी लें, क्योंकि वहाँ पर करंट भी आ सकता है, इस प्रकार के हादसे होने की संभावना भी रहती है। तो अभी हमारे साथ में एक और सीनियर सिटीजन है, और आप हमें ये बताइए कि अशोक उद्यान के अंदर आपको और क्या सुधार की ज़रूरत लगती है कि सरकार कुछ करे, या जो जन समुदाय है यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जोधपुर वासी, वो अशोक उद्यान के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? जोधपुर वासी जो भी कोई भी गार्डन में पधारे हैं तो उससे तो ये है कि खाने पीने की चीज़ों की यहाँ पूरी पाबंदी की हुई है। गार्ड लगे हुए हैं, फिर भी खाने पीने की यहाँ अंदर आने भी नहीं देते, और सारी साफ़ सफाई रहती है और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ बच्चों के लिए जो झूले लगाए हुए हैं, उन झूलों को जो सुरक्षित रखने के लिए बड़े जो सीनियर सिटीजन आते हैं या जो बड़े भी बच्चे के पेरेंट्स वगैरह साथ में आते हैं, वो झूला खा लेते हैं, और झूला खाते हैं तो उस समय जो मतलब वो टूट जाता है, सारे टूट जाते हैं। अड्डे में हादसा भी हो जाता है, कभी कभी किसी के लग भी जाती है, तो उससे बच्चों को है जो मतलब नुकसान होता है। और यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए भी है जो मतलब वो जिम लगी हुई है, तो जिम में भी है जो जिम में कुछ 2-3 जिम्स के जो पार्ट्स खराब हो गए हैं तो उनको भी सुचारू रूप से वापस चलाएं, जिससे क्या कि जो भी आए और एक्सरसाइज करे और अपने स्वास्थ्य को लिए तो उनके लिए काफ़ी मतलब अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है। सूखे पेड़ पड़े हैं करीब 40-50, जो हवा आती है बरसात आती है वो गिरने की संभावना है। कोई भी घूमता है फुटपाथ पे कहीं भी तो उसके जन हानि होने की संभावना, इसलिए पेड़ों को कटवाने की कार्रवाई करा। सूखे पेड़ है उनको कटवा दिए जाए तो कोई भी हादसा नहीं। काफी देखो ना आपके सामने आप घूमोगे 40-50 पेड़ है, और जो भी टूटे हुए जो हरे टूटे काफी बड़े उनको भी हटाने के लिए। अभी हमारे साथ में और यहाँ पर अंकल जी हैं और इनके विचार भी लेते हैं अशोक उद्यान के। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अशोक उद्यान से जुड़े हुए हो और आपको क्या लगता है कि अशोक उद्यान का आपके जीवन में क्या रोल है? मेरे जीवन में ये है कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ शुरू हुआ हूँ, 10 साल हो गए मेरे को आते हुए, और दोनों टाइम आता हूँ। सुबह 4:30 बजे आता हूँ, 2.5 घंटे यहाँ रुकता हूँ, पहले वॉक करता हूँ 45-50 मिनट, उसके बाद 1-1.5 घंटा मैं योगा और योग। लगभग कितना किलोमीटर वॉक कर लेते हैं एक दिन में? मैं यहाँ करीब अभी मेरे फ्रैक्चर हुआ पाँव में, इसलिए 1-1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकता, पर एक्सरसाइज वगैरह ये योगा वगैरह मैं ज़्यादा करता हूँ। 1.5 घंटे शाम को मैं 5 बजे आता हूँ और 7-7:15 यही रूटीन है मेरा एवरी डे, शाम और सुबह भी, और इससे काफ़ी मेरे को सुधार हेल्थ में है। मेरे को आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी 71 में मैं चल रहा हूँ, 70 क्रॉस कर गया, और 10 साल मेरे को रिटायर हो गया। 71 में भी आप इतने फिट हैं, इसका राज है कि आप मतलब लगातार कसरत। अब ये तो जैसे मैंने अब आपको बताया ना, मैं एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह, तो मैं तो अपने मतलब जवान लड़कों को बच्चों को उनको भी यही कहता हूँ, मैं आप एक्सरसाइज और योगा और ये सब करो, और आप स्वास्थ्य लाभ के लिए, ताकि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं जाना पड़े, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और गोली दवाई वगैरह लेना। मैं आज मेरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है बॉडी में, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, और बाकी ऊपर वाले की कृपा है। आप रोज़ मतलब पार्क में आते हैं, यहाँ पर वॉकिंग भी करते हैं, कसरत करते हैं, तो इस प्रकार की कोई सेहत को लेकर समस्या नहीं होती? नहीं, सेहत को लेकर कोई समस्या नहीं है मेरा। अच्छा, दूसरा क्या है कि खाने पीने पे कंट्रोल होगा।
सबसे बड़ी बात यह है, पहला तो ये विचार है कि मेरा खाने पीने पे कंट्रोल है, उसमें मैं मतलब ज़्यादा वो लचीली चीज़ें वगैरह ये नहीं खाता हूँ, और मैं अपना फ्रूट वगैरह ज़्यादा फ्रूट लिया, वो ले लिया, पेय ले लिया, हमने जूस ले लिया, ये ज़्यादा मैं यूज करता हूँ। बाकी मैं चाय वगैरह का मैं करता ही नहीं, पीता ही तो नहीं। अभी हम आ गए हैं घनश्याम जी शर्मा के पास में, और आप हमें ये बताइए कि जो अशोक उद्यान है यहाँ पर काफ़ी सारे कपल है जो आते हैं घूमने के लिए, यानी कि जोड़े, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि कपल्स का यहाँ पर आना सही है या नहीं? कपल का आना सही है, सही है, घूमने आना ही चाहिए। मतलब वॉक से आदमी की अच्छी ज़िंदगी बनती है। और आप क्या कहना चाहते हो, आपके जीवन में अशोक उद्यान का क्या महत्व है? मैं तो यहाँ वैसे वॉक और ये योगा करने आता हूँ, वैसे खास यही मकसद है मेरा, ताकि शरीर फिट रहे। और क्योंकि मैंने हार्ट का भी ऑपरेशन कराया है, मेरी ये एक टांग रह गई थी, बिल्कुल घुटना जो है ना बिल्कुल अनलॉक हो गया था, मैंने योगा से ठीक किया। वो जिसे पैरालिसिस कहते हैं, हाँ, योगा करके आप ठीक हो गए? बिल्कुल एकदम। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने करवाया नहीं, फिर किसी ने बोला योगा करो, बोलो सबसे बढ़िया है। आपके योगा गुरु कौन है? योगा के गुरु कौन है? योगा गुरु हम खुद ही है। अच्छा, तो मतलब आप हमें योगा सिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सिखा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप अशोक उद्यान में आते हैं और योगा सीखना है तो यहाँ पर आप आ सकते हो शाम के टाइम, अंकल जी आपको मिल जाएंगे। तो बड़े लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके पास में काफ़ी ज्ञान होता है और जो हमें प्रदान होता है, और आपको भी इतनी सारी जानकारी मिली, इसके लिए हम इन लोगों के कृपा पात्र हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए आए हम नहाए, ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए आए हम नहाए, ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। तो अभी हम लोग हैं जो अशोक उद्यान के अंदर वॉकिंग कर रहे हैं और ट्रैक पर घूम रहे हैं। हमारे साथ में छोटू भी हैं, हरीश। तो आपको कैसा लग रहा है अशोक उद्यान? बढ़िया। और बताइए अशोक उद्यान के बारे में, आपने क्या खास चीज़ें यहाँ पे देखी? यहाँ पे झूले वगैरह, वॉकिंग कर सकते हैं, एंड योगा एंड हाँ तो दोस्तों, अभी अशोक उद्यान का जो व्लॉग शूट करते करते हमारे अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल शाम हो गई है। और तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये व्लॉग? अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।